Hello, my dear psychology enthusiast. I'm Tanya, and I welcome you all to my channel Psychic by Tanya. In today's session, we are going to start with intelligence testing in India, and also we are going to continue with culture and intelligence. So, without any further delay, let's begin. Okay, so let us now proceed further with the chapter. Intelligence testing in India. S.M. Mohsin made a pioneering attempt in constructing an intelligence test in Hindi in 1930s. 1930s में सबसे पहले एस एम मोहसिन आए और उन्होंने टेस्ट को हिंदी में बनाने का अटेम्प्ट करा. सी एच राइस अटेम्प्टेड टू स्टैंडर्डाइज बिनेज टेस्ट इन उर्दू एंड पंजाबी और उसी टाइम पर महल नोबिस ने भी उसको बंगाली में स्टैंडर्डाइज करने का कोशिश करा. Attempts were also made by Indian researchers to develop Indian norms for some Western tests, including RPM-based Wechsler का test है, Alexander's pass-along, cube construction, and Cole's block design. Long and Mehta prepared a mental measurement handbook listing 103 tests of intelligence in India, जो काफ़ी अलग-अलग languages में available थे. ठीक है. Since then, a number of tests have either been developed or adapted from Western cultures. ठीक है, या तो खुद ही से डेवलप कर लिया या फिर उसको हमने अडेप्ट करा, उसको अपनी लैंग्वेज में मॉडिफाई कर कर अडेप्ट करा. ठीक है. द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट NLAPT इज at the National Council of Educational Research and Training NCERT has documented Indian tests. ठीक है. Critical reviews of Indian tests are published in the form of handbooks, and NLEPT has also brought out handbooks in the area of intelligence, aptitude, personality, attitude and interest. काफ़ी सारे various domains जो हैं उन सब में handbooks release करी गई हैं. ठीक है. Among these, Bhatia's battery of performance test is quite popular. ठीक है. Now we are going to start with one of the main topic, culture and intelligence. इसमें से बहुत सारे questions बनते हैं and various जगह से आपको content भी add करने को मिलता है. ठीक है. A major characteristic of intelligence is that it helps individuals to adapt to their environment. The cultural environment provides a context for intelligence to develop. ठीक है. जिस culture में आप पल बढ़ते हो या बड़े होते हो उसमें आपको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हुई या आपको क्या गाइडेंस मिली, दैट बेसिकली डिटरमाइंस कि आपकी इंटेलिजेंस लेवल क्या होगी और किस तरफ डाइवर्टेड होगी. ठीक है. Vygotsky, a Russian psychologist, has argued that culture provides a social context in which people live, grow, and understand the world around them. For example, in less technologically developed societies, social and emotional skills in relating to people are valued, while technologically advanced societies, personal achievement founded on abilities on reasoning and judgment is considered to represent intelligence. ठीक है. जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थोड़ी कम है वहाँ वैल्यूज़, इमोशंस, इन सब पे ज़्यादा एम्फोसिस होता है. और टेक्नोलॉजिकली स्मार्टर सोसाइटीज़ में आप कितनी अच्छी रीजनिंग करते हो, आप कितना ज़्यादा अचीवमेंट ओरिएंटेड हो, ये सब मैटर करता है. ठीक है. From your previous reading, you know that culture is a collective system of customs, beliefs, attitudes, achievements in art and literature. ये definition is important. आपको content लिखने में help होगी. A person's intelligence is likely to be tuned by these natural parameters. Many theorists have regarded intelligence as attributes specific to the person without regard to their cultural background. कुछ theorists ने क्या बोला, intelligence का culture से कुछ relation नहीं है, it totally depends on the person और उसके attributes पर. ठीक है. The unique features of culture now find some representation in theories of intelligence. पहले लोग ये मानते थे, but now culture is gaining importance in the field of intelligence. ठीक है. Sternberg's notion of contextual or practical intelligence implies the intelligence is a product of culture. जो हमने पढ़ा था business sense, day-to-day lives वाला, वो इसी से related है. Vygotsky also believed that cultures, like individuals, have life of their own. They grow and change, and in the process, they specify what will be the end product of the successful intellectual development. According to him, while elementary mental functions जैसे कि crying, attending to mother's voice, walking, running are universal, the manner in which higher mental functions such as problem solving and thinking operate are largely culture produced. समझ में आया? Elementary functions and higher mental functions, ये दो categories में Vygotsky ने divide करा. ठीक है. Then
दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज़ यानी टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है, इसमें क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं इन पर्सन्स, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डिफरेंस बिटवीन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट, ये भी पूछते हैं, ठीक है। Technologically advanced societies adopt child rearing practices that foster skills of generalization and abstraction, speed, minimal moves, and mental manipulation among children. These societies promote a type of behavior which can be called technological intelligence. In these societies, persons are well versed in skills of attention, observation, analysis, performance, speed, achievement orientation. जो भी हमने पहले क्वालिटीज़ पढ़ी थी ना टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज़ की, वही सब है, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप्ड इन वेस्टर्न कल्चर्स लुक प्रिसाइजली फॉर दीज स्किल्स इन एन इंडिविजुअली, जो स्किल्स मेंशन हुई है इनके बारे में, एंड दीज विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, तो इनको बहुत अच्छे से लर्न करना है। टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस इज़ नॉट सो वैल्यूड इन एशियन एंड अफ्रीकन सोसाइटीज़। इनमें इतना ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं है। यहाँ पर किस चीज़ की वैल्यू है? इमोशंस की, वैल्यूज़ की, सोशली आप कैसे हो उस चीज़ की। द क्वालिटीज़ एंड स्किल्स रिगार्डेड एज इंटेलिजेंट एक्शंस इन नॉन वेस्टर्न कल्चर्स आर शार्पली डिफरेंट, दो द बाउंड्रीज आर ग्रेजुअली वेनिशिंग, क्योंकि अब हम वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अडॉप्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। In addition to cognitive competence, there is that is very specific to the individual. The non-Western culture looks for skills that relate to others in society. Socially आप कैसे हो, I told ना। तो जो वेस्टर्न है उसको हम इंडिविजुअली ओरिएंटेड कहते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक ओरिएंटेशन कहते हैं। एंड द इंडियन कॉन्टेक्स्ट या एशियन और अफ्रीकन कॉन्टेक्स्ट इज़ व्हाट? कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेड, ठीक है। कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेशन है उसकी, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू जस्ट पर्सनल अचीवमेंट बट सोसाइटिकली सोशली आप कैसे हो, ठीक है। इंटेलिजेंस इन द इंडियन ट्रेडिशन, contrary to the technological intelligence, the Indian tradition can be termed as integral intelligence, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ों पर एम्फेसिस होता है। इट गिव्स एम्फेसिस ऑन कनेक्टिविटी विद द सोशल एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट। इंडियन थिंकर्स व्यू इंटेलिजेंस फ्रॉम अ होलिस्टिक परस्पेक्टिव वेयर इक्वल अटेंशन इज पेड टू कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस एज वेल एज देयर इंटीग्रेशन। दोनों को सेपरेटली भी और साथ में कैसे यूज़ करते हैं उस पर। The Sanskrit word buddhi, which is often used to represent intelligence, is far more pervasive in scope than the Western concept of intelligence. Western concept इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं होता जितना बुद्धि वाला कॉन्सेप्ट जो इंडियन कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होता है इन various people. Buddhi, according to J.P. Das, includes skills such as mental effort, determined actions, feelings, and opinions, along with cognitive competence such as knowledge, discrimination, and understanding. ठीक है, दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अमंग अदर थिंग्स, बुद्धि इज़ द नॉलेज ऑफ वंस ओन सेल्फ बेस्ड ऑन कॉन्शियंस, विल एंड डिज़ायर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा पैराग्राफ, पूरा टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं एंड बहुत सारे MCQs और लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। Thus, the notion of buddhi has affective and motivational components besides a strong cognitive component. यानी कि आपके कॉग्निटिव फंक्शंस पे तो फोकस है ही है, बट मोटिवेशन, ठीक है, एक मोटिवेशनल फैक्टर जो होता है, एक फीलिंग्स वाला फैक्टर जो होता है, उस पर भी ये बहुत ज़्यादा एम्फेसिस रोल प्ले करता है, ठीक है। Unlike the Western views, which primarily focus on cognitive parameters, यहाँ पर और भी competencies है। क्या? Cognitive capacity, वही discrimination ability, sensitivity to environment and problem solving, reasoning, ये सारी चीज़ें। Social competence में क्या होता है? आप बड़ों से, छोटों से कैसे बात करते हो, कितना committed हो काम से, ऐसी सारी चीज़ें, ठीक है। आप ज़रूरतमंदों की कितनी हेल्प कर रहे हो, बेसिकली ओवरऑल आप में क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इमोशनल कॉम्पिटेंस में क्या आ जाता है? आप अपने इमोशंस को कितना अच्छे से कंट्रोल करते हो, कितना अच्छे से हैंडल कर पाते हो, आप खुद को कितना अच्छे से जान पाते हो, ठीक है, कितने अच्छे से बिहेव करते हो, ऑनेस्ट हो कि नहीं हो, एम्पैथेटिक हो कि नहीं हो, ये सारी चीज़ें। देन लास्ट इज़ द एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस, which relates to commitment, persistence, patience, hard work, vigilance, goal directed behaviors, जो बेसिकली एक फोकस अटेंशन वाला सीन होता है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, जो एक बिजनेसमैन में, एक एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। देन इमोशनल इंटेलिजेंस, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन।
इमोशनल इंटेलिजेंस क्या करता है, इंटेलिजेंस के स्फेयर को बढ़ाता है, उसका जो इमोशनल साइड है, उसका जो फीलिंग साइड है, उसको बाहर लेकर आता है, ठीक है। यू मे नो दैट इट बिल्ड्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन द इंडियन ट्रेडिशन। अपन ने इंडियन ट्रेडिशन में जो इंटीग्रल इंटेलिजेंस है उसमें इसका फोकस है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ सेट ऑफ स्किल्स दैट अंडरलाई एक्यूरेट अप्रेजल, एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ इमोशंस। अच्छे से समझना, एक्सप्रेस करना और उसको रेगुलेट करना, मॉनिटर करना, ठीक है। इट इज़ द फीलिंग साइड ऑफ इंटेलिजेंस। ये MCQ आ जाएगा, व्हाट इज़ द फीलिंग साइड ऑफ इंटेलिजेंस, देन ऑप्शंस में टिक करना पड़ेगा दैट इमोशनल इंटेलिजेंस। अ गुड IQ एंड स्कॉलिस्टिक रिकॉर्ड इज़ नॉट इनफ फॉर सक्सेस इन लाइफ, ठीक है। आपको बहुत सारी और आपकी एबिलिटीज़ होंगी जो रिक्वायर्ड होंगी टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। यू मे फाइंड मैनी पीपल हु आर अकेडमिकली टैलेंटेड बट आर अनसक्सेसफुल इन देयर ओन लाइफ। दे एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन फैमिलीज, वर्क प्लेस एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ठीक है। उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, दे आर नॉट दैट हैप्पी इन देयर लाइफ। क्या लैक करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। उनको नहीं आता है कैसे अपने इमोशंस को यूज़ करना है डे टू डे लाइफ में, या कैसे उनको कंट्रोल करना है, ठीक है। Some psychologists believe that the source of their difficulty may be a lack of emotional intelligence. This concept was first introduced by whom? Selve and Mayer, very very important, याद रखना ये names. Who considered emotional intelligence as, कैसे उन्होंने उसको define करा, the ability to monitor one's own and others' emotions, to discriminate among them and to use the information to guide one's thinking and action. आप कैसे खुद के और दूसरों के इमोशंस को समझते हो, उसको समझ कर कैसे उसको अपनी लाइफ में हेल्पफुल वे में यूज़ करते हो, ठीक है। उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ करते हो, अपने एक्शंस कैसे उसकी तरफ टुवर्ड्स ओरिएंट करते हो, ठीक है। इमोशनल क्वेश्चन यानी EQ इज़ यूज टू एक्सप्रेस इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे इंटेलिजेंस के लिए IQ है, वैसे इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए EQ है, ठीक है। In simple terms, emotional intelligence refers to the ability to process emotional information accurately and efficiently. To know the characteristics of persons who are high on emotional intelligence, हमें box 1.2 पढ़ना है, which we'll be reading right now. Emotional intelligence is receiving increasing attention of educators for dealing with students who are affected by stresses and challenges of the outside world. Programs aimed at improving students' emotional intelligence have beneficial effects on their academic achievement. सिर्फ emotional achievement matter करता नहीं है, cognitive भी of course important है, and they are related even. तो emotionally better child performs better academically too, ठीक है। They encourage cooperative behavior and reduce their antisocial activities. These programs are very useful in preparing students to face the challenges of life outside the classroom. बहुत important factor है आजकल के टाइम में, या आज के एटलीस्ट वर्ल्ड में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो देखा जाता है वो होता ही यही है कि आप कितना अच्छे से अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पा रहे हो, मेंटेन कर पा रहे हो, आपको आता है कि नहीं आता है, कैसे इन इमोशंस को कंट्रोल करना है, कैसे किस टाइम पर क्या एक्सप्रेस होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंस पर्सन्स, बॉक्स 1.2। परसीव एंड बी सेंसिटिव टू योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। सबसे पहले खुद की फीलिंग्स को समझो, उसको कैसे आपको मेंटेन करना है उसको सीखो। बी सेंसिटिव टू इट, डोंट इग्नोर इट, ठीक है। परसीव एंड बी सेंसिटिव टू वेरियस टाइप ऑफ इमोशंस इन अदर्स, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर, उनके तरीके को देखकर, उनकी वॉइस और भाषा, मतलब जो भी चीज़ें होती है जो एक पर्सनालिटी में दिखता है या इमोशंस एक्सप्रेस करता है, उनको नोट करो एंड बी वेरी मच हेल्पफुल टू देम, या जैसा भी आप कर सकते हो उनको थोड़ा सा हेल्पिंग वे में देखो, एम्पैथेटिक रहो, ठीक है। रिलेट योर इमोशंस टू योर थॉट्स। जैसा इमोशंस हैं वैसे ही थॉट्स प्रोड्यूस होने चाहिए। बी वेरी मच ओरिएंटेड कि हाँ आई विल टेक द राइट डिसीजन। मेरे को ऐसा नहीं होना चाहिए कि इमोशंस आपके कॉग्निशन को एकदम ख़राब कर रहे हैं, कॉग्निटिव उससे आप इमोशन को एकदम इग्नोर कर रहे हो। दोनों को साथ साथ कैसे वर्क कराना है टू गेट द बेस्ट डिसीजन फॉर यू, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। So that you take them into account while solving problems and taking decisions. Understand the powerful influence of nature and intensity of your emotions. Nature कैसे आपको regulate कर पाता है, या हो सकता है ना कुछ लोगों को नेचर के पास पहुँचते ही तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। और कुछ लोग मतलब सबका डिफरेंट रहता है। नेचर इज़ ऐसी चीज़ ना
कि आउटसाइड एनवायरनमेंट का आपके इमोशंस पर क्या असर पड़ता है बेसिकली, ठीक है। कंट्रोल एंड रेगुलेट योर इमोशंस एंड देयर एक्सप्रेशंस वाइल डीलिंग विद सेल्फ एंड अदर्स टू अचीव हार्मनी एंड पीस, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। खुद के इमोशंस को समझना सीखो, दूसरों के इमोशंस को समझना सीखो, उनकी रिस्पेक्ट करो टू गेट अ बैलेंस, अ हार्मनी इन योर लाइफ, ठीक है, ताकि शांतिपूर्वक आपका जीवन हो सके, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे स्पेशल एबिलिटीज़, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के बारे में वील बी रीडिंग। ओके, सो टिल देन सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।